The legacy of Indian Medical Association is that we were part of this making this nation. So we take this responsibility very seriously as a nation builder. And this 2028 Indian Medical Association will be 100 years old. And we have grand plans to observe that in a grand way. One that we have come today before you is on the issues of health of the nation. It's what are our policies and where we stand as a medical profession vis-a-vis the health of the nation. It's not about the demands of the medical profession. It's about what is our policy stand and how we look at health. The most important thing is about the universal health care that we would want the government to take it forward in all seriousness. Indian Medical Association believes the state has a fundamental obligation to provide appropriate medical care. It's the obligation of the state to provide its citizens. And the entitlement of the patient or the citizens of this country will be at least for a basic health package which should be provided by the government in primary care, secondary care and tertiary care. Apart from what the government can directly provide as a basic package, there has to be a strategic purchase from the private sector for services which perhaps made available to the citizens outside what the government setup can provide. We have an opinion on the financing of the health system. IMA believes that a tax-based health financing will be the appropriate one for India. Contributory health insurance offers incomplete coverage and restricted services. So the best model for our country will be tax-based health financing. We are a bit disturbed on the amount of health investment that goes into from the central as well as state governments. Roughly the health expenditure of the nation is around 3.9 to 4% of the entire GDP, out of which 1.1 to 1.6 have been the contribution of both the governments, both state and central. And out of this, 2/3 comes from the state governments. In whatever the governments are contributing, governments are roughly contributing 1/3 of what is being spent in the health. 2/3 comes from the private sector. Even within this 1/3, 2/3 comes from the state governments. And the Indian Medical Association believes a minimal investment of 2.5% is required to meet a basic health package. We would require around 5, but we can start with 2.5. And one of the important things is that whatever expenditure is done on the health determinants, like drinking water or sanitation, should not be coupled with whatever is health investment. Health investment as such should invite 2.5%, excluding the drinking water and sanitation, which are slightly different, come under different ministries also. And in the healthcare expenditure, people are purchasing care, especially outpatient care. The majority of the purchase of care is outpatient care. Among the majority of the purchase of the care, a good amount percentage of the expenditure is on drugs. So drugs is an important component of the healthcare expenditure. And around 55 million people go below poverty line every year, meeting their healthcare needs. So these things have to be addressed. The drugs form the main expenditure. Outpatient care forms the main expenditure. So whatever is decided
should be targeted towards outpatient care also, and also on drugs. जो हमारे मेन इशू है यूनिवर्सल हेल्थ केयर, वो किस तरह से होना चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए, आईएमई क्या भागीदारी है, ये इसमें हमने आपको दी हुई है। इसमें किस तरह से फाइनेंसिंग होनी चाहिए, क्योंकि ये यूनिवर्सल हेल्थ केयर सब लोगों की भागीदारी होनी चाहिए। ये नहीं कि वो केवल एक मेडिकल प्रोफेशन की जिम्मेदारी हो जाए। यूनिवर्सल हेल्थ केयर में गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है किस तरह से डॉक्टर्स को और आईएमए को पार्टिसिपेट कराएं। एएमआर का भी डॉक्टर सैनी ने आपको अच्छे से बता दिया, एएमआर में आईएमए का क्या इशू है और हमारा क्या स्टैंड है, क्योंकि एक बहुत बड़ी वर्ल्ड लेवल प्रॉब्लम है ये एएमआर, जो कि अभी इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, और आईएमए उसको बहुत, आपने लास्ट ईयर भी देखा और पहले से हम लोग करते आ रहे हैं एएमआर के लिए। और आईएमए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे नहीं है। हम समय समय पे अपने डॉक्टर्स को जागरूक भी कराते हैं, उन्हें बताते भी हैं एएमआर की वैल्यू क्या है, लेकिन आपके माध्यम से हम चाहते हैं कि पब्लिक को पता चले कि ये किस तरह से होना चाहिए। हम लोग इस चीज़ को ना प्रमोट करें कि लोग जाएं और काउंटर से दवाई खरीद लें, अपने आप ही दवाई खरीद लें। तो उस तरह का कुछ रेस्ट्रिक्शन और कुछ गवर्नमेंट को आईएमए के साथ मिलकर इसमें पॉलिसी बनानी चाहिए। प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप आईएमए जैसा आप सभी जानते हैं सबसे बड़ी वर्ल्ड की संस्था है, करीब 4 लाख मेंबर हैं, 1760 हमारी ब्रांचेज हैं पूरे देश में। इससे अच्छा नेटवर्क आपको और क्या चाहिए। तो हम लोग हमेशा से अपने आप को वॉलंटियर करते हैं, कोई भी स्कीम हो जो पब्लिक के फायदे की है, गवर्नमेंट की पॉलिसी, हेल्थ पॉलिसी जो पब्लिक को पहुंचानी है, आईएमए सदैव अपने आप को उसके लिए वॉलंटियर करती आई है और अभी भी हम वॉलंटियर कर रहे हैं। दवाओं की गुणवत्ता पे आप लोगों ने देखा ही था, हम लोगों ने खूब डिटेल में आपको सब बताया था जेनेरिक मेडिसिन का, वो इशू है। अभी भी आप पाते हैं अखबारों के अंदर स्प्यूरियस मेडिसिन और कई सारे, इवन दिल्ली स्टेट का ही बहुत बड़ा पोस्टर आप लोगों ने देखे थे कि स्प्यूरियस मेडिसिन का। तो वो एक प्रोसेस होना चाहिए, वो किसी एक स्टेट नहीं, पूरे देश में एक यूनिवर्सल प्रोसेस होना चाहिए। दवाइयाँ जेनेरिक मेडिसिन हम कहते हैं, उनकी गुणवत्ता क्या है, क्योंकि उनकी गुणवत्ता पे जो पैरामीटर्स होने चाहिए वो अभी भी कम है। तो आईएमए की वो चिंता है। आईएमएस का जैसे बताया कि कैडर होना चाहिए जिससे कि हेल्थ डिलीवरी सर्विसेज इंप्रूव होंगी। अगर एक कैडर होगा, सेंट्रलाइज कैडर होगा, तो उसमें सबको अपना पता होगा कि मेरा पाथ क्या है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और मेरा आगे जर्नी क्या है। तो वो ज़्यादा पारदर्शिता होगी, जैसा कि हमारे प्रेसिडेंट ने इंग्लिश वाले वर्जन में बताया था। एनएमसी का हम शुरू से कहते आए हैं कि एनएमसी बना था मेडिकल एजुकेशन के स्टैंडर्ड के लिए। उसको मेडिकल एजुकेशन के स्टैंडर्ड को सुधारने में ही ज़्यादा फोकस रहना चाहिए, रादर देन इधर उधर की चीज़ों पे अपना अननेसेसरी अपने आप को कंट्रोवर्सी में डालने के लिए। हमारे 1,07,000 बच्चे 708 मेडिकल कॉलेज के थ्रू निकल रहे हैं हर साल। उन पे एनएमसी को सीरियसली देखना चाहिए कि एजुकेशन का स्तर क्या है। यूनिवर्सल हेल्थ केयर के बारे में हम सब चिंतित हैं। हम सब चाहते हैं कि हर सिटीजन का राइट टू हेल्थ है और उसको एक प्रॉपर हेल्थ केयर मिलना चाहिए। हम ये भी जानते हैं कि जो पुराना हमारा प्राइमरी हेल्थ स्ट्रक्चर चला है वो वेल वुमेन स्ट्रक्चर है, अच्छा स्ट्रक्चर है, लेकिन उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज जो हैं उनको सुचारू रूप से चलाना चाहिए, चाहे वो प्राइमरी हेल्थ केयर है, चाहे वो सेकेंडरी हेल्थ केयर है या टर्शियरी हेल्थ केयर है। और हमारा ये भी कहना है कि सरकार को जहां जहां डिफिकल्टी है उसमें उनको प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करना चाहिए। और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अपने को रीडेडिकेट करती है कि हम सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उस प्राइमरी हेल्थ स्ट्रक्चर को इंप्रूव करने के लिए और उसके भागीदार बनने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। हम चाहते हैं कि हम पूरे तरीके से सरकार के साथ उन चीजों पर आए। हेल्थ फाइनेंसिंग एक बहुत बड़ा इशू है एंड हम ये चाहते हैं कि हेल्थ के दो कंपोनेंट्स हैं। एक कंपोनेंट है, चाहे हम चाहें कि सैनिटेशन है, ड्रिंकिंग वाटर है, प्रॉपर एनवायरनमेंट है या पॉल्यूशन है, इन सब एक ये एरिया है जिससे बीमारियां होती हैं। एक दूसरा एरिया क्यूरेटिव है जो बीमारियों को ठीक करने का वो है। हमारा ये कहना है कि फाइनेंसिंग में इन दो हिस्सों को अलग अलग रखा जाए। जैसे पिछले बजट में आपने देखा कि सरकार ने 2.5% ऑफ जीडीपी किया, लेकिन साथ साथ उन्होंने एनवायरमेंट और सैनिटेशन को इसमें जोड़ दिया। हमारा कहना है कि 2.5% जीडीपी का मिनिमम इंडियन गवर्नमेंट को हेल्थ पर खर्च करना चाहिए। और इसके साथ साथ जो ये सेक्टर है जिसमें कि सैनिटेशन है या आपको प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना है या आपके एनवायरमेंट में और पोल्यूशन को ठीक करना है, उसमें जो पैसा खर्च होता है वो अलग से उसका बजटरी प्रोविजंस बनाए। बिकॉज संसार में हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है जहां पे मिनिमम जीडीपी का 1.1% पिछले काफी सालों से हम 1.1, 0.9, 1.1 और 1.6% ऑफ जीडीपी के बीच में घूम रहे हैं। तो हमारा सरकार से अनुरोध है
कि जैसे जैसे देश एडवांस कर रहा है, राइट टू हेल्थ और हेल्थ केयर में भी हमको एडवांसमेंट हो और सरकार उसमें हमारे साथ भागीदारी बने। आप ये भी जानते हैं कि 2.6% इसमें जीडीपी का और कंट्रीब्यूशन जो है, जो 4.9 हम कहते हैं, उसका 2.6% तक जीडीपी प्राइवेट सेक्टर दे रहा है। इसका मतलब 2/3 भागीदारी प्राइवेट सेक्टर की है। उस प्राइवेट सेक्टर को मान भी मिलना चाहिए, इज्जत भी मिलना चाहिए, उसके कंट्रीब्यूशन को सराहा भी जाना चाहिए और उनको प्रॉपर्ली रेगुलेट भी करना चाहिए। ये हमारा दूसरा इशू है और हम सरकार के साथ है इसमें कि जिसको किस तरीके से हम आगे बढ़ा सकते हैं। और हमारा तो सरकार से दोबारा ये कहना है कि जो 1.1 और 1.6 के बीच में आपका जो जीडीपी है, उस जीडीपी के उसको बढ़ाया जाए। प्राइम मिनिस्टर की जो ये योजना है, आरोग्य योजना, जिसमें हमारा उसमें एक बड़ा कहना है, पहले भी सरकारी अस्पताल फ्री मेडिकल एड देते थे। आज उन्हीं सरकारी अस्पतालों को हमने पीएमजेएवाई में रजिस्टर किया और वो करीब करीब 70-80 हजार हॉस्पिटल्स हैं देश भर में जिनको रजिस्टर किया। अब उनको फाइनेंस कर रहे हैं हम थ्रू दिस पीएमजेएवाई। हमारा ये कहना है कि इस पीएमजेएवाई का जो फंड है वो सुचारू रूप से, जो चाहे वो इंश्योरेंस के माध्यम से बाकी है, उसको प्राइवेट सेक्टर जो कि उसका भागीदारी है उसको मिलना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर के साथ प्रॉपर्ली नेगोशिएट करें ताकि प्रॉपर तरीके से हम वो हेल्थ केयर को यूनिवर्सल हेल्थ केयर में परिवर्तित कर सकें। हम हर उस सिटीजन के पास जा सकें जिसको हेल्थ केयर अवेलेबल नहीं है। तो यूनिवर्सल हेल्थ केयर का सरकार का जो नारा है और जो पीएमजेएवाई के साथ वो करना चाहते हैं, उसमें ये दुविधा ना रहे, बिकॉज गवर्नमेंट सेक्टर तो ऑलरेडी फ्री मेडिकल एड प्रोवाइड कर रहा है। हमने पीएमजेएवाई में उनको रजिस्टर करके अब उनका भी फंड को हम उधर दे रहे हैं और साथ साथ जो ऑलरेडी फंडिंग उनको हॉस्पिटल्स को हो रही है वो भी हो रही है। हमें उसमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन हमारा ये कहना है कि जो फंड एलोकेशन है, वो फंड एलोकेशन जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के द्वारा जो गवर्नमेंट जो प्राइवेट सेक्टर दे रहा है उसको वो प्रॉपरली जाए और जो उनकी रिम्बर्समेंट है वो प्रॉपर तरीके से हो, प्रैक्टिकल हो। हम कोई इसमें प्रॉफिटेबिलिटी की बात नहीं कर रहे हैं, मोदी बात, बट ऐसी प्रैक्टिकलिटी बात कर रहे हैं। बिकॉज फिर से मैं रिट्रेट करूंगा, हमारे नेशनल प्रेसिडेंट का, सेक्रेटरी जनरल का ये पूरा वादा है, इस साल हम कंधे से कंधा मिलाकर हर सिटीजन को हेल्थ केयर प्रोवाइड करने का प्रतिज्ञा करते हैं। उस प्रतिज्ञा करने के लिए कि हम पहुंच सके, तो ये हमारे सजेशंस हैं, कुछ सुझाव हैं जो कि हम सरकार को देना चाहते हैं। हमने ये भी कहा कि एक्रेडिटेशन जो है क्वालिटी काउंसिल हमको होना चाहिए, साथ साथ हमें रजिस्ट्रेशन और क्वालिटी काउंसिल में सरकार को उसमें भी एक तरीके से ब्रिज करना चाहिए उस गैप को। बहुत बड़ा गैप है जिसको कि सरकार की चाहिए कि सरकार की नीतियां ऐसी हो कि हम क्वालिटेटिव भी हो सके, हम दूर दूर तक पहुंच भी सकें। आज हमने उस तरीके की नीतियां बनाई शायद हमें दूर तक पहुंचने में संभव ना करती हो, तो मुझे लगता है उसमें भी एक रीलुक करने की जरूरत है हमारे एक्रेडिटेशन प्रोसेस में। एंटी माइक्रोबियल के बाद आपने सोचा इस देश में 10 लाख लोग हर साल उनकी मौत होती है बिकॉज ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। वो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बहुत बड़ी एक तरीके से बीमारी होने वाली है, बहुत बड़ा एक तरीके से वो है जो कि आगे आने वाले सालों में बहुत मुश्किल करने वाला है। आपके माध्यम से हम इन सिटीजन्स को इस देश के बताना चाहते हैं, एंटीबायोटिक का मिसयूज ना करें, केमिस्टों से ना खरीदें, प्रॉपर जो मेडिकल एडवाइस के बाद खरीदें। या आपका एक प्रिस्क्रिप्शन जो साल भर से चला आ रहा है, आप उसमें 3 कैप्सूल लेके फिर छोड़ देते हैं, वो आपको जो इरेगुलर मेडिकेशन ले रहे हैं और आप कहीं ना कहीं प्रीएक्टिव ले रहे हैं, उससे आपके बॉडी में उन एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस हो रहा है। तो जब वो आपको उस एंटीबायोटिक की जरूरत है वो काम नहीं कर रही है, इसको हम एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस कहते हैं। तो मुझे लगता है कि एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो कि इतना बड़ा कारण है आज के दिन अनफॉर्चुनेट डेथ्स का, उस पे हम पब्लिक तक सिर्फ आपके माध्यम से पहुंच सकते हैं। खाली सरकार या मेडिकल एसोसिएशन ये काम नहीं कर सकती हैं, आपके माध्यम से कि एंटीबायोटिक का मिसयूज ना हो, ये आपको अपने लेखों में या अपने जो वेरियस वो हैं, वो एक तरीके से हम सब हेल्थ रिपोर्टर्स बैठे हैं यहाँ पे, उन सबका ये बहुत बड़ा योगदान होगा हमारी हेल्थ में कि हम एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को पब्लिक तक पहुंचाएं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हम हर बार बोलते रहे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हम बिल्कुल कमिटेड हैं कि हम जिस तरीके से भी सरकार को हमारा योगदान चाहिए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन थ्रू इट्स 4 लाख मेंबर, हम कमिटेड है हर तरीके से, हर फॉर्मेट में कि हम उनके साथ मिलजुल के काम कर सकें, ताकि हमारा भी एम हुआ है कि राइट टू हेल्थ हर पब्लिक को, हर पब्लिक के हर उस दूरगामी सदस्य ट्राइबल एरिया के लोगों को, हर तरीके के लोगों को विलेजेस में हम हेल्थ केयर को प्रोवाइड कर सके। क्वालिटी ऑफ ड्रग्स के बारे में मैं जरूर कंसर्न अपना दिखाऊंगा, जैसे हमारे नेशनल प्रेसिडेंट ने कहा, हम बिल्कुल सरकार के साथ हैं कि लो कास्ट मेडिसिन मिलनी चाहिए।
बट वो क्वालिटेटिव है, इसका रीएश्योरेंस भी ड्रग कंट्रोलर को हमें देना होगा। लो कॉस्ट ड्रग्स क्वालिटेटिव है और वो उनकी क्वालिटी प्रॉपर टेस्ट हुई है, बहुत जरूरी है। एज डॉक्टर्स अगर हम लो कॉस्ट ड्रग्स या ऐसी दवाइयों को इस्तेमाल करें, उनकी क्वालिटी एश्योरेंस नहीं है, तो वो भी एक बहुत बड़ी वो है। तो हमें हमारी चिंता का विषय है कि क्वालिटेटिव ड्रग कंट्रोलर को और सरकार को क्वालिटेटिव मेडिसिन प्रोवाइड करना या क्वालिटेटिव उसकी क्वालिटी को टेस्ट करना उनकी जिम्मेदारी है। और वो एक उस तरीके का फार्माकोपिया निकाले कि दीज ड्रग्स हैव बीन प्रॉपर्ली टेस्टेड एंड कैन बी यूज्ड, चाहे वो जनरिक की फॉर्म में हो चाहे वो ब्रांडेड की फॉर्म हो, बट उनका रिसर्च और उनका क्वालिटी टेस्ट होना चाहिए। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बारे में आप सब जानते हैं कि हमारे कोविड की मैनेजमेंट में हमने बहुत अच्छे तरीके से किया, और आप अगर देखेंगे तो जो आईएएस लोग भी थे वो डॉक्टर आईएएस लोगों को हमने डिफरेंट पोजीशन पे रखा था। तो सरकार को भी इसका आभास है कि इस प्रकार की महामारी में और सिचुएशंस में जो मेडिकल ओपिनियन एडमिनिस्ट्रेटिव ओपिनियन के साथ मिलती है वो एक बहुत अच्छा वो करती है। इसलिए इंडियन मेडिकल सर्विसेज का हमने कहा है और वो आगे चल रहा है। हमें लगता है कि आप सबकी मदद से उसमें भी हम सक्सेसफुल होंगे। हम चाहते हैं इस देश में डॉक्टर्स आए, हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा मेडिकल स्टूडेंट्स हों, बट क्वालिटेटिव। जिस प्रकार से सरकार हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में या बाकी जगह मेडिकल कॉलेजेस खोले, ये अच्छा है, लेकिन ये भी जरूर देखें कि वहां पे क्या हम क्वालिटी टीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, फैकल्टी प्रोवाइड कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। अगेन इसमें इंडियन मेडिकल एसोसिएशन सराहनीय काम कर सकती है कि अगर जहां जहां इस प्रकार से फैकल्टी अवेलेबल नहीं है या क्वालिटेटिव मेडिकल एजुकेशन नहीं है, हम कंधे से कंधा मिलाकर मेडिकल एजुकेशन को अपने मेडिकल स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करने में, जहां हम आज के दिन विश्व गुरु बन रहे हैं मेडिसिन प्रोवाइड करने में। आज आपसे 10 साल पहले जो लोग बाहर जाते थे अब यहाँ आ रहे हैं, मुझे लगता है उस इमेज को धब्बा ना लगे, इसलिए जो क्वालिटेटिव वो है, और जहां तक फैकल्टी की अगर कमी है तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कंधे से कंधा शोल्डर करने को तैयार है कि हम उनके साथ मिलकर हम क्वालिटेटिव मेडिसिन को प्रोवाइड करेंगे। आप सबको उसके लिए वायलेंस के बारे में आप जानते हैं, मुझे बहुत कुछ कहना नहीं है। वायलेंस में हमारी एक ही वो है कि हम वायलेंस पे सेंट्रल एक्ट लाए। जब 25 स्टेट्स स्टेट एक्ट ला चुकी हैं और उसके प्रोविजंस अलग अलग हैं हर स्टेट के, हम चाहते हैं हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें चाहिए एक प्रोविजंस वाला आईपीसी में एक एक्ट बने जो सेंट्रल एक्ट हो। वैसे भी नॉर्मली कहा जाता है कि 6 और 7 स्टेट अगर कोई एक तरीके का एक एक्ट लाती हैं तो सेंट्रल उसके बारे में सोचता है कि सेंट्रल एक्ट लाए। तो हमें अपने वायलेंस के सारे हम चाहते हैं हमें सेफ एनवायरनमेंट मिले, सेफ जोन मिले जिसमें हम लोग काम कर सके, हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमें अपने हॉस्पिटल्स को सेफ जोन डिक्लेयर करें, चाहे वो सिक्योरिटी के हिसाब से बात करें या वो इस तरीके के डेटरेंट एक्ट्स लाए जिससे पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में ना ले। इसलिए वायलेंस के बारे में हमें कहना है। हेल्थ मैनिफेस्टो के बारे में हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का पहली बार हेल्थ मैनिफेस्टो अगले 4 हफ्ते में आपके पास होगा, जो हम पॉलिटिकल पार्टीज को और सरकार को गाइड करेंगे कि हेल्थ मैनिफेस्टो इस प्रकार का होना चाहिए। और ये सारी चीजें पॉइंट्स हैं जो हम चाहते हैं कि हर पार्टी अपने पॉलिटिकल मैनिफेस्टो में उसको रखे और